Assalamu alaikum students. We will now discuss today the strategic management. In previous class, we discussed what are the foundations of the planning, and now we will discuss more advanced topic that is the strategic management. It is actually the process which many organizations undertake in order to develop long-term plans and to establish the competitive advantage for their organizations so that they can perform more, they can address a lot of the opportunities which they have, and they can also make strategies and plans to remove their weaknesses and to the garner the benefits in the environment. Okay. So what is actually the strategic management? It is the strategy which managers do to develop the organizations. Yeah, you can so the strategic management is the process through which the organizations develop their strategies. Okay, so what is the strategy? Strategies are decisions and actions that determine the long run performance of an organization. Uh, Strategic management is actually a process through which people formulate the strategies, implement the strategies, and then evaluate the strategies. So, what are the strategies? Are the strategy? This word is come from the word strategies, and it shows that the planning in the long term. Okay, so the decision and the actions that determine the long run performance of an organization. So certain decisions cover a very shorter period of time, whereas their managers take the certain decisions which have an impact for the longer period of the time. It means sometime you plan for current year, or you plan for the next year, but sometime you have to plan for 5 years, 10 years, or more than that. So it means you have to determine the direction of your organization. What you have to do, you have to take a certain decisions which you will not complete within a year. Say, for example, you want to establish a new unit, and or you want to enter into a new market, and you want to initiate a new product line. Okay, so these are the decisions which you cannot cover in a single day, or month, or even in a single accounting period. So they require a lot of resources, lot of efforts, lot of uh, you know uh, commitment. So certain decisions take a longer period. So these decisions will have the greater impact over the organization's overall performance and the efficiency. So that's why these are called the strategies, the long-term plans, and the process in which you undertake and plan and implement and formulate these strategies is called a strategic management process, right? तो सिंपली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि ये लंबे मुद्दत की जो है, जो आप मनसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उन प्लानिंग में वो जिसमें आप कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो है डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और उसमें मिसाल के तौर पर आप नया यूनिट डेवलप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई नई मार्केट में जाना चाहते हैं, आप कोई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पुरानी प्रोडक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, कोई एक सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे अमल को हम जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को समझने के लिए से पहले जरूरी है कि आप बिजनेस मॉडल को समझें कि क्या होता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिजाइन फॉर हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजीज, work processes, and work activities. So the business model mainly focuses on two things: whether the customers will value what company is providing, or whether the company can make any money doing that. Okay. So the major thing whenever you want to do something new, you want to see that whether your customers will be interested in your operations, or the outcomes which you are providing or not. Okay. If you know that you can create something
which is highly valuable for your customers. So then you have to answer the second question, that is, what is in it for the company? Okay. Say, for example, you want to develop a new product. You have an idea that a new product can be initiated and a new product line can be introduced. So you can think that what is the prospects of the customers, what are the prospects for uh, the growth of this product, and you know the- okay, what are the prospects of that the customers will like your product, huh? So if you think that yes, this product will provide the benefits to the customers and customers are likely to purchase this product and adopt this product, okay, so then you will see how much revenue you can generate out of introducing this product. Okay, so any work process which you want to initiate, any work activity you want to do, you have to see these two things. Okay, so whether, because the sole purpose of the development and establishment of the organization, the corporation, or the business model is to provide something which has a utility for the customers, which can you address a certain need, and in making this happen, you have to generate the profit for you. So if anything which you can generate for the customers, and customers don't value it, or customers cannot purchase it, or customers cannot think that it is beneficial to them, so it means its demand will be low, and you will not be able to generate a revenue, so your business model will fail. So you know that it's a very costly thing. Actually, what we do, we have to see that whether our activities will be benefiting the customers or not. If our customers are being benefited, then how much benefit you can achieve and obtain from that activity. Okay? So why the strategic management is important? You know, when you do a long-term planning, when you think for greater period of time, and when you have the outline the activities which you have to conduct for over the years which are coming. Okay, so it means it will increase your performance. It will increase your organizational performance because you have to achieve those objectives which will change the scope and shape of the organization, huh? And the scope and the scale of your operations. Okay, so that's why uh, strategic management is directly related to the increase of organizational performance. Then it requires that the managers examine and adapt to business environmental changes. We must know that the environment in which we are working, the organizations are working, is dynamic. It's not static. It is changing day by day because of the changes in different factors, different sectors, and different, the environmental condition. Say, for example, sometimes the technology is changing. Sometimes the people and customers are their preferences are changing. Sometimes there are economic downturns. There are sometimes certain other factors which compel us to change our strategies just because the organizations are a tiny part of a mega environment, huh? So you have to be impacted by the environmental changes. So through the strategic management, you can create a fit between the change and between what you are, the state which you have, the capacity which you have, and the capacity which are required by the by the environmental, the limitations and obligations. So through the strategic management, you can cope up with the challenges which are posed by the environmental factors. Okay, so you can think that things are changing around you, and through the strategic management, the long-term planning, and having a long-term focus, you can identify the problems which you can you can sense and feel in future. You can think that the certain changes are being carried out in certain sectors, so you get prepared for those changes. Okay, so you have to keep an eye on the changes, and then you have to adapt uh, adopt and address those challenges. So it is the strategic management which help you understand the clues in the environment
and then respond to those environmental changes very promptly and relevantly. Okay, so it is the second benefit of the strategic management. Thirdly, it coordinates the diverse organizational units, help them focusing on the organizational goals. You know that as I discussed, the organization as a corporation or any organization is a part of a tiny. It is a part of a mega environment. It is this very minute thing when you consider that the organization in relation to the different environmental factors, the economic factors, and other legal and other environmental factors. Okay, so you are a single part. Even sometime a single industry can or a single firm cannot have an impact over a whole industry. Okay, so although it is different, it may vary from the market structure perspective. As we discussed in economic subject, that there are certain market structures in which sometimes there might be only one company, the monopoly, but normally there are very few monopolies. But you know that you are working with your competitors, so you are you are part of a mega environment, and you have to be very responsive to those environmental factors. But in internally in the internal settings of the organization, the organization is composed of varied units, okay, who are working in different sectors. So they have every department, every function, every sector of a single organization, a single corporation, have different objectives and have a different mode of working. But you know that strategically they are subject to achieve a single goal, a single set of goals, but their mode of actions are relatively different from each other, although they are relevant to each other. Okay, so in the presence of strategic management, you can synchronize all those the differences into a single direction to achieve a very common and shared goals. If you don't do it, if you don't have a long-term plan, so you cannot create a harmony between these different units and the departments of the organization. Okay. Number four, it is a very much involved in managerial decision making process. Okay, so the strategic management is actually the engagement of managers in the long term decisions. And when you employ the strategic management in organization settings, you can engage your managers in thinking and planning and generating new ideas, new alternatives of your problems. And then it also compels managers to have an eye over the developments in the environment, and they can use the marketing intelligence opportunities to know the developmental factors. So it is actually the collecting data, analyzing the data, and then interpreting data to to use it in a decision making process. Okay, so when organizations imply or work through the strategic management, so their managers are very much active in decision making processes. Okay, so whenever we say the strategic management, it is a process. It is a process of basically the three major, the activities. Number one, we formulate the strategies, implement the strategies, and evaluate the strategies. This is actually the strategic management process. But you before you think about formulating the strategy, you have to do certain things. Okay, certain things in background. So all these activities are a part of a single strategic management process. So firstly, to begin with the strategic management, you have to be very much clear about the organization's current mission, goal, and strategies. Okay, so it means you must know what is the core purpose of an organization, what organizations need to work, huh? What organizations, what is the basis of existence of organization. Okay, say for example,
uh, what is your objective of being over there? So you must know your mission, your goals, and your objectives. Because if you don't do it, you cannot know how to articulate the activities. You know? So you cannot know how to undertake different activities. Okay, so you have to identify what is the current mission, goal, and strategies of an organization. Then you have to evaluate the environment. Okay, you know that as I discussed earlier, your organization is a part of a maker environment. So the things around us offer us two things. Okay, uh, the two things are offered by the external environment, and when you analyze the things in external environment, so we call it an external analysis. So they offer two things. One thing, sometimes they offer certain benefits to us. There are the certain conditions which might benefit us. Okay, and there are certain conditions sometimes which might pose a greater threat to us. Okay, so those things, the environment, the factors, the characteristics of the environment are any things which provide us the the propose us the benefits. We call it the opportunities. Okay, and anything which may pose a threat to us and may be harmful for us, and which may the usurp certain benefits from us, we call it a threat. So we have to see what are the opportunities and threats posed by the environmental conditions, and then we have to analyze our organization's capacities. Okay, we call it an internal analysis. So the internal analysis is composed of again two things. We have certain benefits, we have certain capacities, and we call it a strength. The strength means those capacities, the positive capacities, which can be beneficial to us right now in a right now condition. Okay, so what you have right now and what sort of benefits you can they generate from those conditions, so that is your strength. You know? So uh, the capacities which are short of attaining the opportunities, and attaining the benefits, so it means that those are the weaknesses. Weaknesses are certain shortcomings in you, which you cannot fulfill right now. Sometime in a future state, future time period, you can you can work hard to control your weaknesses, you to erase your weaknesses. But we are talking about a current time period when you cannot utilize certain things. Okay, so it means that's your weakness. Say for example, if I ask you, you are a first year student. So if I can tell you, okay gentlemen, you have to collect data and analyze it, interpret it, and write a research based article. Okay, so you cannot do it just because you have not gone through the research methodology courses and the research data collection courses and analysis and analytical courses. You have not studied the quantitative techniques and so on. So you cannot write certain things. But after 2 or 3 years, you will be able to it. So now this is your weakness. But after 2 or 3 years, that may not be a weakness. But that will be on the condition that you work hard and you can achieve it. So again, we cannot say that how many of the people will be able to to control that weaknesses and develop it into a strength. But we have, if currently we are talking, we can understand that what are your strengths and what are your weaknesses with regard to your ability to write a research-based article. Sometimes some of you might be good in reading the literature and writing it and comprehending it. So you might be good at writing skills and comprehension skills, but you may not be able to analyze the quantitative data, which we do it, which we you can learn at a later stage. So sometimes strength and weaknesses are actually changing it. So is in the case with opportunities and threats. So because you know that any opportunity which comes to you, sometime it comes for a very short period. So all the opportunities which come to you have a different time period, which is a different time response. After the expiry of that time, that opportunity may be expired.
and you may lose that opportunity. So this time period is called a window of opportunity. What is that? This is called a window of opportunity. It means a window of opportunity is like that, the time period for which an opportunity is available for you. Say, for example, you see an advertisement that someone is hiring a graduate from the business degree, the bachelor's degree, or the fourth degree program. Okay, so that advertisement has a time period of 15 days to apply for that job. So that's the window of the opportunity of the 15 days. If you apply within the time period, you can be a potential candidate of that vacancy. If you fail to apply within a time period, it means that window of opportunities is expired. Okay, so the opportunities are coming for you for some time, a specific time period. So every time, every opportunity is not available for you. Nobody waits for you. No any positivity waits for you for a longer period. Okay, so you have to identify those opportunities and threats. Okay, so sometimes a threat may become bigger with the passage of the time, you know, and the opportunities may become shorter with the passage of the time. So it requires that you have to be very much prompt to respond to those opportunities and threats. You know? So that is very much important for you to understand that you have to be very much careful. So when we the internal and external analysis combined is called a SWOT analysis. So S and W stands for the strengths and weaknesses. O and T stands for opportunities and threats. So these four things we normally conduct as a part of the SWOT analysis, the strength, weaknesses, opportunity, threats, and everything. So yeah, so when you do it, you now after a particular SWOT analysis, you have a list of the things. Huh? You can know what are the benefits which are being offered by the environment. Okay, and what are your strengths to achieve those environment. Okay, then you can see that what are threats to it. Say, for example, threats might be the external and internal. Huh? External threats might be those threats which are which they face from the external environment. Huh? Internal threats might be your own. Huh? That we call a weakness. So, say for example, again, take an example of that single job. Okay, you have an opportunity, and then you applied for that job, and it means you did not let that window opportunity closed, and you responded well. But now, because you have a degree, so it is your strength. No? So, what are your threats? There might be certain people who will apply for the same job. No? So, when you compare your skills, abilities with the skills and abilities of your competitors, so if anything you are lacking, so it is your weakness. Say, for example, you are good at HRM subjects, but you are not good at the finance subjects. So, you might be this might be your weakness. So if you are good at finance subject, but you are not good at marketing subject, so it again might be your single weakness. So what you have to do, you have to undertake the strategies to control those weaknesses. So it is something which is personal to you. But in the organization, corporate and the bigger level, there are bigger level opportunities, bigger level threats, and the strength and weaknesses at also the same scale in the pace. So again, now we have to go and move for the formulating strategies. Formulating strategies means you have to write down the strategies and prepare the strategies, plans, and then implement it and then evaluate it. So we will be discussing these in details. So, firstly, what was step one? It was to identify the organization's current mission, goals, and strategies. What is the mission? Firm's reason for being. As I said earlier, it is your core purpose of establishment of the organization. What are the scope of your products and services? So, say for example, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है क्यों बनती है
ये जो स्कूल बने हुआ है, कोई स्कूल आपने डेवलप किया, किसका उसका मकसद क्या है ना? स्कूल का मकसद क्या होता है? टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, है ना? सो अगर आप लॉ फॉर्म बनाते हैं, व्हाट इज इट? टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, सो दैट माइट बी मिशन। अच्छा, अगर आप एक जो है व्हीकल सर्विस स्टेशन बनाते हैं, उसका क्या मकसद है? टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सर्विस एंड मतलब वो जो भी आप मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है ना, और वो स्टेटेड मिशन होता है, स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप लिखते हैं और आप उनको फिर फॉलो करते हैं, ठीक है? और वो आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हिसाब से वेरी करता है। गोल गोल क्या है? द फाउंडेशन फॉर फर्दर प्लानिंग। मिशन आपका एक जनरल स्टेटमेंट होती है, जनरल एक चीज होती है, और फिर आप उसको फर्दर गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। और गोल्स क्या है? वो आपके मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं। आप कहते हैं जी कि हमारा काम क्या है कि लोगों को जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना उनके प्रॉब्लम्स के, ठीक है? फिर उनके से फॉर एग्जांपल अगर उनको आप समझते हैं कि जी हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी और सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक ये मिशन हो गया, गोल हो गया। फिर उसके गोल को आप वो करते हैं, उसको जैसे जैसे आप स्कोप को बढ़ाते जाएंगे आपके गोल्स भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है? तो वो आपके गोल्स हैं जो कि आपकी एनुअल और मंथली और जो है आप टारगेट्स बनाते हैं, ठीक है? फिर आप क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस का आप करते हैं। मैंने कहा ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके आप स्पेसिफिक जनरल इन्वायरमेंट को चेक करते हैं। आप देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन से थ्रेट्स आपको एनवायरमेंट की तरफ से आ रहे हैं। Okay, these are the actually the components of a mission statement. जो हमने कहा था missions, तो missions जो है उसमें आप there are certain concerns about the customers or you know the markets, and there might be the customer for concern for survival, growth, and profitability, and certain mission statements you know reflect your philosophy of doing the work, and in certain mission statements show the concern from for the public image, or concern for the customers, which means mission statements which are which show who are your customers, okay? And say for example in which firm, in which market, in which geography, in which geographic area you are working. Okay? Sometimes you develop a mission statement which indicates your commitment for the growth and the financial stability. Okay? Sometimes your mission statements reflect your firm's basic beliefs, values, and ethical priorities. Okay, so these are all things which you do it in order to just develop your own image and your the image of the firms. Okay, or sometimes you indicate the products and services. Okay, in your mission statement. And sometimes you go for the development of the technology or your self concept. It means what are the firm's major competitive advantage and core competencies. Sometimes your mission statements show your concern for employees. It means are the employees a valuable asset of the firm or not. Okay. Or there's a third step, and that is doing an internal analysis. Okay, internal analysis में क्या करते हैं? We assess the organizational resources, capabilities, and activities. Okay, it means what are your strengths and what are our weaknesses. These are things which we have discussed earlier, and we have to analyze the financial and physical assets. Okay, sometimes you know that the process of analyzing the financial and physical assets is fairly easy, but you cannot easily assess the intangible assets, those assets which cannot be seen, but which can be only explained in the you know intangible terms. What are those assets? The intangible assets, those are the implied skills, culture, corporate reputation, and so forth. And it is not an easy job to evaluate, appraise the level of the assets, okay, the intangible assets. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मगर आपको ये करना पड़ेगा कि आप पहले देखें कि आपके पास जो है फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं,
आपके पास फाइनेंसेस कितनी है, आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें, आपके पास जो है वो मशीनरी कितनी अवेलेबल है और आपकी कैपेसिटी कितनी है, और उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज के एक्सेस कितनी है, और सप्लाई लेवल के रिसोर्सेज पर आपकी जो है वो एक्सेस कितनी है। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल जो है वो एसेट्स और फिजिकल कंडीशन को अब ज़ाहिर करती है। तो उसके अलावा जो आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपके पास किस लेवल के हैं, उनकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, उनके स्किल लेवल क्या है, उनके एटीट्यूड क्या है, उनके एजुकेशन क्या है, आया आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कमिटेड हैं या नहीं हैं, या कामचोर हैं, कैसे हैं, आपके मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कि काम करने का एनवायरनमेंट है, कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, या हर बंदा अपने इंडिविजुअल जो है वो बेनिफिट्स के पीछे दौड़ता है। मतलब किस तरीके से आपके लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी परफ़ॉर्मेंस को जो है वो इंडिकेट करेंगी, शो करेंगी, ठीक है? तो स्टेप 2 और 3 को हमने कहा कंबाइनली हम क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है? और ये स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अपॉर्च्युनिटीज एंड थ्रेट्स, ओके? तो कॉर्पोरेट रैंकिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं, कुछ आपको ये फिर आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। और देन कम्स फॉर द स्टेप 4 दैट इज़ द फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? पहले तो हम स्टेप 1, 2, 3 हम पहले भी डिस्कस करके आए थे, मगर हमने अभी बताना है कि स्ट्रेटजी आप कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू डेवलप एंड एवेलुएट द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, ठीक है? स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स क्या है, देखिए डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू डेवलप सर्टेन अल्टरनेटिव्स फॉर दोज प्रॉब्लम्स, ओके? because you have to generate the alternatives, and every problem have can be solved from different sources, different ways. All those ways which can be used to address a single problem, we can say those ways as the alternatives, okay? तो उन alternatives को आपने डेवलप भी करना है और उनको आपने यूज भी करना है। Then you have to select appropriate strategies for all levels in the organization that provide relative advantage over competitors, ठीक है? फिर आपने उन alternatives में क्या करना है, बुनियादी तौर पर जो strategic मैनेजमेंट का काम होता है कि आपने जो है वो ऐसा अल्टरनेटिव चूज करना है जिसमें आपको कम से कम कास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है? और आपको ये भी करना है कि यू हैव टू मैच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ थ्रू एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे बड़ी काम जो है आपने करना है, क्योंकि आपके पास जो है आपके पास डेटा आ जाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं और आपके पास स्ट्रेंथ कौन सी है जब आप सवाल एनालिसिस करते हैं। तो पहला तो काम आप ये करेंगे कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें। फिर आप ये करेंगे कि आपके पास जो वीकनेसेस हैं और उन वीकनेसेस की वजह से जो थ्रेट्स डेवलप होते हैं, तो उन वीकनेसेस को आपने कैसे ख़त्म करना है और उन थ्रेट से अपने आप को कैसे बचाना है, ये आपने चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है अपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बारे में। देन यू हैव टू यू नो द implement those strategies. Implementation is basically acting upon uh, मतलब है कि those plans, okay, effectively fitting the organization structure and activities to the environment. तो फिर जब आप प्लानिंग करते हैं और जब आप अपनी स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, तो उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो कोशिश करनी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो डिज़ाइन है उसको आप चेंज करते हैं और आप उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं और आप उसको उसके मुताबिक जो है वो पोजीशंस को अरेंज करते हैं और जो है वो प्लान जो है वो आप ड्यूटीज तकसीम करते हैं, प्लान जो है वो आप इम्प्लीमेंटेशन का मरहला शुरू करते हैं, ठीक है? उनको आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ठीक है? द एनवायरनमेंट डिक्टेट्स द चोजन स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच इज मैच्ड टू इट्स रिक्वायरमेंट्स, ओके? और स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, वी हैव टू एवलुएट द रिजल्ट्स, ओके? हाउ इफेक्टिव हैव आवर स्ट्रेटजीज बीन, ओके? And what are the adjustments, and if any you have to you know you have to make it, okay? अब क्या करते हैं इवैल्यूएशन में? आपने पहले अपने आप का एनालिसिस किया, उसके बाद आपने एक स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी को आपने अमल किया और उसके बाद आपने उनके रिजल्ट्स को चेक करना है एक टाइम पीरियड के बाद कि आया उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है?
उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आप आया आपके जो अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहे हैं, इसका मतलब है इट इंडिकेट्स कि आपका प्लान जो है वो क्या नाम है जो है वो सही प्लान से, इफेक्टिव प्लान से और वो आपको बेहतर नताइज दे रहे हैं। और अगर नहीं है, अगर आपको ने 2 लेवल पे प्रॉब्लम चेक करनी है। आया एक तो है कि प्रॉब्लम्स की फ़ॉर्मूलेशन सॉरी स्ट्रैटेजी की फ़ॉर्मूलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी फ़ॉर्मूलेशन स्टेज पे कोई गलती की है और आपने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने प्लान नहीं की, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने कुछ हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर थे जो कि आपने उनको जो है वो ऐसे असेस ही नहीं किया, आपने उनका अंदाज़ा नहीं लगाया या कुछ इस तरह की स्टडीज़ थी फर्दर जो आपको करनी चाहिए थी और आपने वो नहीं की। ये देखिए आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं ना और मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं एक किसी इदारे के लिए या उसके लिए तो आपको उसके लिए ना ज़मीन की टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, ज़मीन के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने ऐसे कोई मरहले हैं जिसके साथ मिसाल के तौर पे आपने कुछ कॉन्टैक्ट्स करने थे लोगों के साथ आपने नहीं किए या कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो आपने नहीं की, तो आपको पता चलता है कि आपके स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो आप उसको भी अपडेट करते हैं, उसको आप एडजस्टमेंट करते हैं। फिर हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो वीकनेसेस आपकी आई हैं, तो आप उनको भी करेक्ट करते हैं और आप ठीक करते हैं कि आया उनमें मतलब हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्लान था, उसके लिए आपने एक सेपरेट यूनिट डेवलप करना था, आपने नहीं किया, ठीक है? और उसके लिए आपने कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ देनी थी, एक सेपरेट टीम्स डेवलप करनी थी, वो आपने नहीं की। तो आपने फिर उसको एडजस्टमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर आप जो है वो सारी स्टेजेस का आप मतलब एक रिव्यू कर रहे होते हैं और आप चेक कर रहे होते हैं कि आप के काम जो है वो या प्लान्स के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है? उसमें आप ये चेक करते हैं कि आपके प्लान आपके मिशंस के मुताबिक है या नहीं है, फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपके प्लान के मुताबिक है या नहीं है और आपके रिजल्ट्स जो है आपके इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक है या नहीं है। तो यहाँ थोड़ा-सा हम ये रिव्यू करेंगे कि स्ट्रैटेजीज़ होती कौन-सी हैं और व्हाट आर दोज़ टाइप्स ऑफ द ऑर्गनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़. So firstly, you have to see that certain strategies are the strategies which cover the whole organization. Okay, or we call them the corporate strategies. These are developed by the top management, and these strategies are top management's overall plan for the entire organization and its strategic business units. Okay, ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी कारपोरेशन जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड हुई होती है और उसकी एक कंपोजिशन होती है ऑर्गेनाइजेशन या कारपोरेशन। तो हमने जो कारपोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज हैं वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है उनका फोकस होता है और उनका स्कोप में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो कारपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी कौन सी होती हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स लिहाज से टाइप्स उनके कुछ ये होते हैं और 3 किस्म की होती हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिन्यूअल। ग्रोथ स्ट्रेटजीज वो होती हैं जो कि आपकी जो है एक्सपेंड करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम को और उनके जो फंक्शंस हैं उनमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स लाना चाहते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप हो सकता है कोई नए प्रोडक्ट्स और मार्केट्स की तरफ जाना चाहते हो, कोई न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं या किसी नई मार्केट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपके फंक्शंस बढ़ेंगे, आपके जो है वो काम की स्पीड भी बढ़ेगी और उसका स्कोप भी बढ़ेगा, ठीक है? तो ये ग्रोथ की स्ट्रेटजी है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। स्टेबिलिटी की जो है वो तब होती है कि जब आपके पास जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप समझें कि उसके काफ़ी थ्रेट्स मौजूद हैं, तो आपने अपनी पोज़ीशन को जो कि आपने एक हासिल की हुई होती है ओवर द पीरियड उसको मेंटेन करना है, ठीक है? ताकि आपकी पोज़ीशन डाउन ना हो, कम से कम ऊपर नहीं जाती, तो कम से कम डाउन ना हो, आप एक स्टेबल रहें और इसको मैच्योरिटी कंडीशंस आप हासिल कर सकते हैं उसमें। तो ये दैट इज़ स्टेबिलिटी, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस क्वो। मकसद है कि आप जो जिस जहाँ हैं, वहाँ आप रुकना चाहते हैं, वहाँ से आप नीचे नहीं गिरना चाहते। तो क्योंकि सम टाइम ये होता है ना कि आप जो है डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे होते, मगर आपकी जो स्ट्रेंथ है या जो आपके लिए जो आपकी वीकनेसेस हैं या जो भी इंटरनल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनल आपकी जो स्ट्रेंथ है, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि भई हमने जो है क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करना चाहते हैं कि हम जो है अपनी पोज़ीशन को मुस्तहकम बनाएँ और ताकि हमारी जो है पोज़ीशन वीक ना हो और कोई और जो
जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो और हमें इस कंपटीशन से आउट न कर दे, तो आपने एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिसके तहत आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वो लोगों के साथ अपने आप को मेंटेन करें, अपनी पोजीशन को मेंटेन करें, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। और फिर कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी नहज पे पहुंच जाती है कि आपके पास वहाँ उस एरिया में काम करने के का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी आप वहाँ पे वो आपका जो बिजनेस है वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं रहता, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सी कंडीशंस हो सकता है कि जो कंपटीशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हों, हो सकता है कि उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हों कि जो है वो ख़त्म, मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट्स की जो उस लेवल की वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है। और मिसाल के तौर पर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो आपने क्या करना है कि फर्म को आपने रीडायरेक्ट करना है, रीन्यू करना है और उसको आप नई जो है वो मार्केट्स की तरफ ले जाते हैं और फर्म में कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं और उस तरीके से आप अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि चेंज ओरिएंटेड होती हैं और उनको हम रिन्यूअल स्ट्रेटजीज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप थोड़ा-सा यूँ अंदाज़ा लगा लें कि एक कॉर्पोरेशन ऐसी है जो कि मल्टी बिज़नेस कॉर्पोरेशन है, जिसके काफ़ी सारे बिज़नेसेस हैं और बिज़नेस यूनिट्स हैं, तो वो जब कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी बनेगी, तो वो सारे उनको कवर करेगी। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक तो स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो कि सारों के लिए होती है, फिर उस स्ट्रेटजी के अंदर हर बिज़नेस यूनिट के लिए अलग-अलग जो है वो जो है वो उसकी आप समझें कि स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है? फिर फंक्शनल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज़ जो है वो उसकी बनती है। हर ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? हर बिज़नेस यूनिट के अंदर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के लिए फिर अलग-अलग जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे बात करा है कि जी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? सीकिंग टू इंक्रीज़ द ऑर्गनाइज़ेशन बिज़नेस बाय एक्सपेंशन इंटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। इसके कौन से टाइप्स होते हैं? कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है? इट फोकस ऑन अ प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस एंड इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर द मार्केट सर्व, ठीक है। ये कंसंट्रेशन के अंदर ये है कि आप कोई नया बिजनेस लाइन नहीं शुरू कर रहे हैं, मगर उसी के अंदर ही आप प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं और नई मार्केट्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मतलब कोई नया बिजनेस, कोई नई प्रोडक्ट लाइन नहीं शो कर रहे, मगर उसके अंदर ही आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसके अलावा अब नई मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो ये कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी हुई। और उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा देखें कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, और इसके 2 होते हैं कि एक बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और होते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा ना कि एक सिस्टम का एक हिस्सा होती है और वो सिस्टम का हिस्सा ऐसे होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स। और कभी-कभी वो आप जो है मिसाल के तौर पर देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंड अलोन काम नहीं करती। मिसाल के तौर पर उसने रॉ मटेरियल लोगों से खरीदना है, दूसरे इदारों से खरीदना है और उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए और उसने नई प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है और फिर फर्दर उन प्रोडक्ट्स को उसने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए फिर कुछ इदारों की मदद लेनी है, कुछ लोगों की मदद लेनी है जिन्होंने उनको कस्टमर्स तक जो है वो एक्सेस देनी है, ठीक है। तो ये जो 2 आपके कंडीशंस हैं, जो एक आपके आगे हैं और कुछ आपके पीछे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुई? अटेम्प्ट टू गेन द कंट्रोल ऑफ इनपुट्स, यानी बिकम अ सेल्फ सप्लायर। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है? वो कपड़ा बनाती है, कहाँ से बनाती है, कैसे बनाती है? कपड़ा जो है वो प्राइमरी जो इनपुट है उसका वो तो कॉटन हुआ, ठीक है। कॉटन yarns जो है वो कॉटन का कौन सप्लाई करता है जी? कॉटन की जो चेन है फार्मर से शुरू होती है और जो है एक कपड़ा जो है आप समझिए कि कपड़ा बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, उस तक पहुँचने के लिए बहुत से हाथों तक वो कॉटन गुज़रता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कॉटन जो है जिनिंग फैक्ट्रीज़ में जाता है, वहाँ से सिर्फ साफ़ होता है, फिर उसके बाद जो है
उसके ऊपर बड़े रोप बनते हैं और फिर उसका धागा बनता है। ये मैं मोटी मोटी चीजें बना रहा हूँ। और फिर धागे के बाद उसका कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद फिर इंटरनल और प्रोसेस होते हैं कि जिसकी कलरिंग होती है, पैकिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब बन के एक प्रोडक्ट बाहर निकल के तैयार होकर बाहर जाती है तो उसके बाद भी एंड कस्टमर तक आने तक जो है उसको काफी सारे सप्लायर्स, सॉरी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स और होलसेलर्स का एक मार्केटिंग का चैनल है पूरा, और उससे गुजर के एक कस्टमर तक चीज आती है। ठीक है, तो जो आप देखें, अगर एक फर्म, अगर टेक्सटाइल फर्म चाहती है कि कॉटन भी हम प्रोड्यूस करें, धागा भी हम प्रोड्यूस करें, जिनिंग भी हम करें, सारे काम हम करें, ये इसका मकसद ये हुआ कि आप जो है वो पीछे जो सप्लाई लाइन है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपकी ये ग्रोथ हुई। आपने जो है, आपको जो है जो इनपुट दूसरे लोग देंगे वो महंगी पड़ेगी। जब आप खुद डेवलप करेंगे तो उसमें जो है वो जो चीज़ें आपको कास्ट के हवाले से बेनिफिट होंगे वो आपके हो जाएंगे। फिर फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ आउटपुट थ्रू कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, distribution channel are provide customer service activities, यानी eliminating intermediaries। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ होता क्या है कि आप जब देखते हैं कि जी काम जो है वो आपने करना है, तो फिर आप क्या नाम है, तो आपने मतलब उनको खत्म कर देते हैं। किनको खत्म करते हैं? आप जो है इनको, जो बीच में जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको खत्म कर देते हैं। सप्लाई चेन पूरी आप कंट्रोल कर लेते हैं जब आप वर्टिकल और सॉरी बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, एक आपने काम करना असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने ना पूरा कारपोरेट सेक्टर का, यानी कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर का जो है पूरी सप्लाई चेन आपने डेवलप करनी है, और आपने ये बताना है कि उसका एक कार्टन जो है वो कपड़े तक पहुंचे, क्लॉथ तक डेवलप होने में मतलब किन किन प्रोसेस से गुजरता है, इसकी एक इमेज आपने बनानी है और उसकी आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एक प्रोसेस आपने डेवलप करना है। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें असाइनमेंट, और ये मैं फिर जो है आपने शो भी करने में LMS पे इसको रख भी दूंगा कोशिश करके। सर ग्रुप में भी भेज दीजिए उसको। ग्रुप में आप भेज दें, मैं आपको LMS पे रख दूंगा। ठीक है, अगली बात क्या हुई कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, कंबाइनिंग ऑपरेशन विद अनदर कॉम्पिटिटर इन द सेम इंडस्ट्री टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड द लोअर कॉम्पिटिशन अमंग इंडस्ट्री राइवल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं, यानी या को आप जो है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप परचेज कर लेते हैं या उनके साथ जो है आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो आपके बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टाग्राम भी खरीद लिया उन्होंने। तो इस तरीके से उनके जो भी सोशल मीडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उनको उन्होंने परचेज कर लिया। बात समझ आ रही है? तो ये आप समझिए कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है कि आपका पूरे इस सेक्टर के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, और फिर समटाइम आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं दूसरी फर्म्स को, मगर वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बस, और उनको आप सिर्फ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। समटाइम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है कि growing by the combining with the firms which are unrelated, where the higher financial returns are possible. ओके, फिर आप देखेंगे सैमसंग जो है, सैमसंग आप जब सैमसंग का नाम लेते हैं शायद आपने देखा होगा सैमसंग में से मोबाइल और टेलीविजन और ये होते हैं। अगर आप सैमसंग की इंडस्ट्री को देखें तो उनके पास और बहुत सी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसके अलावा और भी वो काफ़ी सारे उसके बिजनेस जो हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रेटजी में अगली स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजीज होती हैं, और वो स्ट्रेटजीज क्या, स्ट्रेटजीज टू मेंटेन द स्टेटस को, टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द डायनामिक एनवायरनमेंट when industry is experiencing slow or no growth conditions, if the owners of the firm elect not to grow for personal reasons. Stability strategy जिस तरह मैंने बताया वो होती है कि जो कि जब आप एनवायरनमेंट के अंदर जो है काफ़ी सारा कंपटीशन आपको आ रहा है, मगर आप कोशिश करते हैं कि उस कंपटीशन में आप रहें, आउट ना हो जाएं। ठीक है, और अपनी मतलब अपनी जो करंट पोजीशन है उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं। और रिन्यूअल स्ट्रेटजीज मैंने पहले भी बताया कि डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू काउंटर ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिक्लाइंस।
और रिन्यूअल में आप क्या करते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके तहत आप अपने आप की वीकनेसेस को खत्म कर रहे होते हैं। और यू डेवलप टू मेजर स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज और टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज। और रिट्रेंचमेंट क्या है? फोकसिंग ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन क्रिटिकल वीकनेसेस एंड रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ टू ओवरकम करंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। टर्न अराउंड में आप क्या करते हैं? एड्रेसिंग क्रिटिकल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एलिमिनेशन मेजर्स एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशंस। कि जब आपके पास ना आप जो है वो आप समझें कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो जा रही है, वीक हो रही है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज में आप क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि जो है अपनी स्ट्रेंथ को खत्म मतलब है कि ओवर रिस्टोर करें। और ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि वीकनेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइनर मेजर किस्म की नहीं है, उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं और अपने करंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। टर्न अराउंड में आप बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, बहुत मतलब है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए आप जो है वो थोड़ी ग्रेटर स्कोप की जो मेजर्स लेते हैं जिसमें आपने कास्ट कटिंग स्ट्रेटजीज होगी, समटाइम आप रिस्ट्रक्चर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, समटाइम जो है आप हो सकता है कि आप अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को जो है वो क्या नाम है मर्ज कर लें, ठीक है, ताकि जो है उनके जो आपकी जो फिक्स्ड कास्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, तो उससे भी आपकी एवरेज कास्ट जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आगे जो है ना आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस समटाइम बिजनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, और वो कौन सी हैं? स्ट्रेटजीज फोकस्ड ऑन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड compete in each of its SBU यानी strategic business units, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि दे वांट टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एज और टू जनरेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि आप कंपटीशन में होते हैं तो आप अपने राइवल्स को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन से distinctive competitive edge, ठीक है। It means an ability of an organization to outperform their rivals। यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, आप उनको टैग डाउन करना चाहते हैं और आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। तो उसको जो आपने क्या करना है, मेजर आपका जो फोकस होता है वो ये है कि क्वालिटी आप अपनी इंक्रीज करें, और ताकि आपकी क्वालिटी जो है इट विल बी valued by your customers, and it will generate more customer base, and it will be able to have a competitive advantage, okay। तो क्वालिटी को कैसे कहते हैं? डिफरेंशिएट फर्म फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। क्वालिटी, क्योंकि आप दो कंपनीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो किस वजह से करते हैं? आप उनकी सर्विस क्वालिटी को देखते हैं, आप उनके प्रोडक्ट क्वालिटी को देखते हैं, आप उनके प्रोडक्ट प्रोटेक्शन को देखते हैं, आप उनके इमेज को देखते हैं, आप उनकी जो है वो रेपुटेशन और वैल्यू को देखते हैं। तो ये है कि आप जो है वो कंपेयर करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो पहली चीज आती है वो क्वालिटी की आती है। और इट क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो होता है जो लॉन्ग टर्म आप हासिल करें, ठीक है। एक वन टाइम हो, मिसाल के तौर पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए परचेज करें कि उसकी प्राइस कम है, मगर आपको पता है कि ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और प्राइस कम होने से जो है वो आपके पास जो है कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपने चीज़ की परफॉर्मेंस को देखना है, उनके फीचर्स को देखना होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स को देखना होता है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके अलावा क्वालिटी जो है वो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द कंपनी फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट टू अचीव द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड मीट कस्टमर्स डिमांड फॉर क्वालिटी, ठीक है। जब आप क्वालिटी को एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं कि आगे मतलब है कि देखिए किसी और चीज़ के ऊपर के बजाय, प्राइस के बजाय, और फीचर के बजाय आप ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जो है वो एनहांस करते हैं, और आप देखते हैं कि लोग आपके पास सिर्फ आपकी क्वालिटी की वजह से आए, आपके काम की क्वालिटी की वजह से आए। तो फिर ये इससे क्या होगा कि ये इट इंडिकेट्स कि यू care for the customers more because you are providing the things, the products and services which have a greater quality, okay। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस continuing over time to effectively provide resources and develop core competencies that enable an organization to keep its edge over its industry competitors।
देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो हमने कहा कि वो है कि जिसके तहत आप दूसरी फर्म से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? यानी दूसरी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर क्या है? एक जैसा पेप्सी या कोका कोला ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है? क्योंकि जब एक चीज़ जो आपके पास आती है वो दूसरे के पास भी जाने के चांसेस होते हैं, दूसरी कंपनी भी उसको हासिल कर सकती है। तो आप कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आपके पास आनी है वो आपके पास आएँ, दूसरे के पास ना जाएँ जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? तो इस वज़ह से आप उनको आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सस्टेनेबल तब है जब आप अपनी क्वालिटी को मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को डेवलप करते जाएँ और अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करते जाएँ ताकि ज़्यादा अरसे तक जो है आप इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन में रहें और लोगों को जो है लोगों से आप जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करते रहें, ठीक है? ये आपका सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो समटाइम मैंने कहा ना कि आर्ज़ी तौर पर आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है मगर बाद में आप फिर डाउन हो जाते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल ना रहा, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो कौन सी फोर्सेस है जो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को खत्म करती है? मिसाल के तौर पर देखिए आपने एक नई मार्केट में एक नया बिजनेस आइडिया लेके आए और उसका आइडिया जो है किसी और के पास नहीं है तो यकीनन सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, सारे लोग जो है सारा बेनिफिट आप लेंगे और सारे लोग आपको ही आपकी तरफ ही रुजू करेंगे तो फिर आपके तो बड़े मजे हैं और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर रहे हैं, ठीक है? मगर क्या ऐसा है कि आपका ये प्रॉफ़िट हमेशा के लिए रहेगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जब आप ज़्यादा अर्से तक रह रहे हैं तो फिर तो आपके पास हम कह सकते हैं जी कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मगर आप ज़्यादा अर्सा नहीं रख सकते क्योंकि कुछ फ़ोर्सेस ऐसी हैं जो आपके इस कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन के लिए खतरा बन सकती हैं, ठीक है? उसको समझने के लिए कि कौन-सी फ़ोर्सेस हैं वो आपके लिए ज़रूरी है कि ये 5 फ़ोर्सेस मॉडल जो है इसको ज़रूर देखें, ये पोर्टर ने दिया था 5 फोर्सेस मॉडल और ये क्या है देयर आर इसे की जी 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी कॉम्पिटिशन को ख़त्म करती हैं और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को ख़त्म करती हैं और कौन-सी हैं? नंबर 1 पॉइंट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? कि आप the ease or the difficulty with which new competitors can enter into the market or the industry. It means whenever you develop a new idea, you can find out that new organization is also developed. New organization is also developed, the person, the organization becomes your own new competitor. ठीक है? अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपकी जो है ज़्यादा कास्ट इन्वॉल्व है और ज़्यादा कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व है जो सिर्फ आपके पास है, तो फिर नए लोग नहीं आ सकते, तो फिर आप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एंजॉय करेंगे ज़्यादा अरसे तक। अगर आप समझें कि आपने एक ऐसा बिज़नेस शुरू किया है या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है लॉन्च की है, जो कोई भी कर सकता है, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी देखिए कोविड की वैक्सीन फाइज़र ने जो है वो जारी की है। तो आप क्या समझते हैं कि फाइज़र की सेम वैक्सीन, सेम कैपेसिटी वाली कोई और कंपनी बना सकती है? नहीं बना सकती। वजह कि उसके पीछे आप समझें कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद उनका फ़ॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का जो तरीक़ेकार है, उ उसका वो पेटेंटेड होगा और उनको एक लाइसेंस उनके पास होगा। कोई और बंदा उनकी मर्ज़ी या उनके लाइसेंस के बगैर नहीं बना सकता। तो फिर आप समझें कि ये वाली जो वैक्सीन है और ये सिर्फ़ उनका जो बेनिफिट है उसी कंपनी को जाएगा या उनको जाएगा जिनको ये लाइसेंस पर जो है जो लोग परचेज़ करते हैं। तो आप समझिए कि इसी मार्केट के अंदर न्यू एंट्री जो है वो इतनी ईज़ी नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक़्त भी 2 से 3 एक्टर्स हैं जो कि इस न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट के मरहले में दौड़ रहे हैं, दौड़-भाग कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये इतनी ईज़ी नहीं है कि हर बंदा ये बना ले। तो फिर इसका मकसद है कि जिस किसी ने भी बनाया अपना फ़ॉर्मूला तो उसको काफ़ी बेनिफिट जो है वो ज़रूर होगा। मगर जब तक कोई सस्ती मार्केट में चीज़ नहीं आ जाती, तो तब तक जो है जो जिसने पहले बनाया है, उसको ये बेनिफिट हासिल होता रहेगा। ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि जो है वो आप समझिए कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के उसका डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर मबनी होगा। ठीक है? जो सेकंड बात है वो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट।
extent to which switching costs and brand loyalty affect the likelihood of customers adopting substitutes, products and services. देखें ये अल्फाज में बड़े डिफिकल्ट हैं, शायद आप इसके लिए वो उनके लिए इतने ज़्यादा आपके लिए वो ना हो, फेमिलियर ना हो। स्विचिंग कॉस्ट क्या है? स्विचिंग कॉस्ट ये है कि आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आप एक ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उस ब्रांड से दूसरी ब्रांड तक जाने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और कौन से बेनिफिट आप लूज करते हैं, कौन सी कास्ट आपको अनकर होती है, ये आपकी स्विचिंग कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर आप अगर आप इस वक्त जो है एक कोई मैं इस वक्त जो है वो HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं डेल की तरफ जाता हूँ तो जो HP के जो बेनिफिट हैं वो मुझे डेल में नहीं मिलेंगे या किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये एक स्विचिंग कॉस्ट को आप सुनने को मेयर करें। फिर क्या है कि आप अपने ब्रांड के साथ कितना लॉयल रहते हैं, मगर उसके हटकर भी आप ये देखें थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होते हैं। सब्सटीट्यूट बेसिकली आपको क्या है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट इज अ प्रोडक्ट which मिसाल के तौर पर there are two products, product A and product B. So product B can be said a substitute of product A in case the product B offers same benefits which are being provided by product A. In that case, we can say that product B and A are substitutes of each other. ठीक है, अगर product B is not offering the same characteristics or same benefits, so it means the product B is not related to the product A, so these are not substitute to each other. ठीक है, मिसाल के तौर पर आप चाय पीते हैं तो चाय का क्या सब्सटीट्यूट है? अगर आप चाय नहीं पीते तो हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अगर आप चाय नहीं पी रहे हैं तो हो सकता है आप कॉफी पी रहे हैं, हो सकता है मिल्क पी रहे हैं, हो सकता है आप कोई और चीज पी रहे हैं। तो एनीथिंग व्हिच इज फ्लूइड and in terms of fluid you intake, so it is a substitute ना। तो चाहे अब फिर कुछ क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, कुछ डिस्टेंट सब्सटीट्यूट होते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिफरेंट है। तो सब्सटीट्यूट वो चीजें हो गई। बार्गेनिंग पावर बायर्स, ठीक है, बायर्स का बार्गेनिंग पावर कब बढ़ता है? बार्गेनिंग पावर तब बढ़ेगा जब सब्सटीट्यूट ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मिसाल तो मैंने आपको बताया कि HP महंगा मिल रहा है तो मैं डेल की तरफ चला जाऊंगा, डेल महंगा मिल रहा है तो मैं कोई और की तरफ चला जाऊंगा। अगर आपको एक स्टोर पे जाते हैं, वो स्टोर आपको इजी में नहीं है, महंगा है, दूसरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर एक चीज आपको ज्यादा लोग ऑफर कर रहे हैं तो फिर आप नखरा करेंगे। बायर्स, तो डिग्री टू विच बायर्स हैव द मार्केट स्ट्रेंथ टू होल्ड अवे हेल्प स्वे ओवर द इन्फ्लुएंस कॉम्पिटिटर्स इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, बायर्स का कितना वो है, बार्गेनिंग पावर है कि उनको कितनी पावर उसमें है जिसके तहत वो कॉम्पिटिटर्स को मजबूर कर सकते हैं कि अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, जबकि आपको पता चलेगा कि जी ये आपका कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर की तरफ चला जाएगा तो फिर आपके जो है वो आप उसको you will be willing to reduce your cost and price. Okay, so that is the main thing. उसके बाद जो है दो चीजें हैं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स एंड करंट राइवलरी। ठीक है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स क्या है? द रिलेटिव नंबर ऑफ बायर्स टू सप्लायर्स एंड द थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स एंड न्यू एंट्रेंट्स अफेक्ट द बायर सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, कि अगेन आप ये देखेंगे बात ना सप्लाई मार्केट जो है वो बड़ी शिरक होती है, और अगर ऐसी कंडीशन है कि जब सप्लायर बहुत थोड़े हैं और उनके अगेन जो है वो चीज़ें उनसे लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो सप्लायर्स भी फिर अपनी बार्गेनिंग पावर यूज़ करते हैं और फिर ये बार्गेन करते हैं और देखते हैं कि अच्छा जी हम लोग जो किसको चीज़ दें किसको ना दें। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे अभी शुगर केन का सीजन है, तो शुगर केन में सप्लायर कौन है? फार्मर है, और बायर्स कौन है? जी शुगर मिल है। तो फिर क्या करते हैं, जब शुगर मिल जो है वो उनको उगना नहीं मिलता तो वो फिर क्या करती है, प्राइस इंक्रीज करती है कि अच्छा मेरे पास आ जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि एक शुगर मिल की तरफ लोग नहीं देंगे तो दूसरी की तरफ चले जाएंगे, नहीं तो तीसरी की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, उस लिमिटेड सप्लाई में से हर बंदा अपना शेयर हासिल करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि समटाइम ना स्टॉक ऑफ सप्लाई यू कैन नॉट इंक्रीज। हमने एक चीज जो है वो शायद पढ़ी होगी कि जो सप्लाई है और उसको समझने के लिए जरूरी है कि मोर देयर इज अ प्राइस मोर विल बी सप्लाई। सो other two the forces are bargaining power of suppliers and the current rivalry.
we discussed the bargaining power of suppliers. Now current rivalry क्या है? Intensity among rivals increase when industry growth rates slow, demand fast, and product prices are low. Okay. अब ये देखें, rivalry जो है वो sometimes benefits to the customer, sometimes benefits to the suppliers. Okay. अब मैंने यहाँ बार्गेनिंग पावर में जो एग्जांपल दी थी शुगर केन मार्केट की, जब ये शुगर केन वाले जो मिले हैं, शुगर मिल ओनर जो है सारे आपस में मिल जाते हैं, एक मुआहदा कर लेते हैं कि हमें इस कीमत पर ही लोगों से चीजें खरीदनी है, तो फिर क्या होता है, कंपटीशन उनकी दरमियान जो राइवलरी है खत्म हो जाती है, और वो फिर जो है बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की लूज हो जाती है। ठीक है, क्यों लूज हो जाती है कि कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर एरिया से एक तो खरीदता नहीं है, और या उस कीमत की रेंज से आगे वो ज्यादा मतलब कीमत ऑफर नहीं करता। ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ कंपनीज आपस में मुआहदा करके और एक बात पे आ जाएं, उसको हम कहते हैं कार्टल। ठीक है, कार्टल्स डेवलप हो जाते हैं। जब कार्टल्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर बेनिफिट है वो उनके आते हैं। हाँ, जब ये आपस में इनकी राइवलरी बढ़ जाती है, कार्टल्स डेवलप नहीं होते, तो फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बढ़ जाता है, और वो फिर जो है ये कंपनी जो है वो सही फ्लेक्सिबल हो रही होती है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्राइसेस ऑफर कर रही होती हैं। सेम सिचुएशन इन द डिमांड साइड और द कस्टमर साइड, कि जब इनके दरम्यान में कंपटीशन होता है तो वो हर कंपनी जो है वो क्या करती है, लोगों को डिमांड जो कट करती है। मिसाल के तौर पर आप टेलीकम्युनिकेशन का या सेल्यूलर इंडस्ट्री का ले लें, जोंग काम कर रही है, यूफोन काम कर रहा है, और वो दूसरी जो है जेएस काम कर रही है, ये भी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स है ना। तो जब एक कंपनी कोई ऑफर करती है, पैकेज ऑफर करती है, तो फिर कोशिश करती है दूसरी कंपनी उसी लेवल का पैकेज दे दे। ठीक है, क्योंकि उन्हें फिर पैकेजेस भी देने पड़ते हैं, उन पैकेजेस की कीमतें भी ड्रॉप करनी पड़ती हैं। अगर वो कहते हैं जी डिवाइस हम दे रहे हैं और डिवाइस के ऊपर अभी हम एक मंथली पैकेज दे रहे हैं, एक प्रमोशन का पैकेज दे रहे हैं, तो वो फिर जो है दूसरी भी कंपनी देती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, वो बढ़ जाता है, और कस्टमर्स के पास जो है वो इनफ दे हैव एन एबिलिटी टू या ऑप्शंस टू मूव बिटवीन डिफरेंट राइवल्स ना। ठीक है, ये जो हमने थर्ड ऑफ बार्गेनिंग पावर बायर्स बताया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये राइवलरी लेवल, अगर इनके दरम्यान में एग्रीमेंट हो जाए, फिर ये नहीं ऐसा नहीं करना, ये वो नहीं करना, जिस तरीके से आप देखेंगे कि दूसरी छोटी सी एसोसिएशन होती हैं, टेलर्स की एसोसिएशन हो गई, और इस तरह की जो है वो लोगों की एसोसिएशन होती है, वो एक रेट्स वगैरह मुकर्रर कर देते हैं कि जी इससे आगे या पीछे आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि उनका बेनिफिट उनको होता है और कस्टमर्स को उनको बेनिफिट नहीं होता। तो जितनी लेवल ऑफ राइवलरी बढ़ेगी, उतना जो है लोगों को, कस्टमर्स को या उनके सप्लायर्स को भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइवलरीज और इसके बारे में जो है वो चीज़ें चेक करते हैं कि क्या-क्या है। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग करंट कॉम्पिटिटर्स की लेवल के ऊपर क्या है। अब ये देखें कि हमारे पास क्या फोर्सेस हैं, न्यू एंट्रेंट्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, और सब्स्टिट्यूट है, और दूसरा सप्लायर्स है। न्यू एंट्रेंट्स, बायर्स, सब्स्टिट्यूट और सप्लायर्स, ये चार चीज़ें जो हैं वो डिटरमिन करती है कि आपके पास जो है वो पांचवी है इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग, ये 5 फोर्सेस मॉडल है इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ये स्ट्रेटजीज भी हमने पढ़ी है, कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, लोकेशन स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी। कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी वो है जिसमें आपने क्या करना है कि लोएस्ट टोटल कास्ट जो है वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और ताकि इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स को आप कास्ट के मामले में अपनी प्राइस कटिंग स्ट्रेटजी देते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जी अपने कास्ट जो है वो कम करें। ठीक है, और अपनी ओवरऑल कास्ट जो है वो कम करते हैं, ताकि देखिए आप जो है ना प्राइसेस जो मतलब मेंटेन करते हैं ना, डिटरमिन करते हैं, तो प्राइस में हमने पहले भी पढ़ा था, बड़ा सिंपल सी बात है, ये समझना जरूरी होती है कि आप मिसाल के तौर पर एक 1000 रुपया कहीं प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपका पास प्राइस का जो होता है पार्ट्स जो होते हैं, जो फार्मूला है उसमें क्या है, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस है। एक 1000 रुपया प्राइस है, तो उसमें हो सकता है कि 800 रुपये आपकी कास्ट है और 200 रुपीज क्या है आपका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को या बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास दो चीजें, या तो प्राइस बढ़ा दें
या आप कास्ट को कट कर दें। अगर आप 1000 से 1200 कर देंगे, कास्ट आपकी 800 है तो आपका 400 रुपए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। इसी है। तो अगर यहाँ पे जब आप प्राइस इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो आपको पता है फिर डिमांड के ऊपर उसका असर होगा। तो आप चाहते हैं कि जी सेम प्राइस के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो उसका हल क्या होता है? उसका हल होता है कि कास्ट कटिंग स्ट्रेटजी। आप कास्ट को कम कर दें, 800 से 700 पे ले आएँगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 200 से इंक्रीज़ होकर 300 पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं कि कास्ट कटिंग स्ट्रेटजी सब करते हैं और कास्ट को डिक्रीज़ करते हुए आप कॉम्पीट करते हैं लोगों के साथ। तो इस वजह से आपने ये देखा होगा कि जो है चाइना की जो चीज़ें हैं, चाइना जो है क्यों पूरी मार्केट के ऊपर ग्लोबल मार्केट के ऊपर छा रहा है, कि उनके यहाँ जो चीज़ें बनती हैं वो एक तो हाई टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं और फिर दूसरा ये है कि उनकी जो है प्राइसेज़ जो है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव होती हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं लोगों को। इस वजह से दूसरी चीज़ों की तरफ लोग नहीं जाते। वो क्यों सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं कि उनके यहाँ चीज़ें कॉस्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि कम से कम रहे, ठीक है? इसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है वो आप देखिए कि मार्केट को ग्लोबल मार्केट को पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज हैं अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस फॉर व्हिच कस्टमर्स विल पे अ प्रीमियम, ठीक है? तो आप देखें कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में यू आर ऑफरिंग समथिंग एक्स्ट्रा, हाँ, कोई चीज़ आप उसके साथ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं जो किसी और बंदे के पास नहीं है, फिर लोग आपको ज़्यादा प्राइस देने के लिए या ज़्यादा चीज़ें देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है? तो प्रीमियम क्या है? एनी एडिशनल अमाउंट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मिसाल तो 1000 रुपए प्राइस है, बट आपने कोई और फीचर उसमें ऐसा ऐड किया है कि जो कि आपको तो 50 का पड़ा है मगर किसी और के लिए वो मुमकिन नहीं है। तो लोग उसके लिए 100 रुपया देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ होती है कि आप उसको किस तरीके से जो है वो मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर फोकस स्ट्रेटजी क्या है? यूजिंग कास्ट और डिफरेंशिएट एडवांटेज टू एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट रेदर देन अ लार्जर मार्केट। सम टाइम ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपकी मार्केट के अंदर ना बहुत से लोग होते हैं, कस्टमर बहुत से टाइप के लोग आपके पास कस्टमर होते हैं। फिर उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ जो है आपके पास कमिटेड होते हैं, कुछ जो है वो कमिटेड नहीं होते। तो फिर आप एक सेगमेंट को चूज़ करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा लॉयल और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आप उनकी प्रेफ़रेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें डेवलप करते हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलता है। ठीक है? ये फोकस स्ट्रेटजी हो गई। तो बाकी चीज़ें जो है ये क्या है हम बातें अच्छा आजकल जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो बड़ी उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो बिज़नेस है वो हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है? हम कोई स्टैटिक चीज़ें नहीं बना सकते, क्यों? कि ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रेटजीज़ चेंज हो गई हैं कि बिज़नेस की जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स था वो चेंज हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस की तरफ आ गए। फिर यहाँ पे आजकल फ़ोकस पहले था प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जी प्रोडक्ट्स अच्छी हो, अभी फ़ोकस है कस्टमर सर्विस के ऊपर। कि जी आफ्टर सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है? सिर्फ़ एक सिम बेच देना काफ़ी नहीं होता, उनके ऊपर जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे ख़त्म करते हैं। फिर इनोवेशन की बात है, नई-नई चीज़ें ले आएँ, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करें, तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब आप देखें इंटरनेट ने चीज़ों को बिज़नेसेस को बदल दिया है, कैसे बदल दिया है कि इंटरनेट ने जो है वो ऐसे नॉलेज बेस क्रिएट किया जिसकी तरह आप जो है वो मतलब है कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर हर चीज़ हर वक़्त हासिल होती है, उन्हें अर्निंग मिलती है, ठीक है? और फिर इंटरनेट की वजह से आपके कस्टमर जो है वो एक कोलैबोरेटिव पार्टनर्स बन गए, कैसे बन गए? कि दे कैन यू नो दे प्रोवाइड यू डिफरेंट हेल्प इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, रिव्यूज़ एटसेट्रा, ठीक है? फीडबैक लेना कस्टमर से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, ठीक है? तो आपको कस्टमर जो है वो एंगेज रखते हैं, आप उनके साथ एंगेज रहते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाती है, ठीक है? और फिर ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो बहुत पेपरलेस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, ठीक है? अब देखें रिसेंटली जो है जो ऑनलाइन बिज़नेस है, वो बहुत बढ़ गया है। ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस बना रही हैं जो कि जिनका कहीं वजूद ही नहीं है, ठीक है? मतलब कोई उनके पास फिज़िकल एसेट्स नहीं है, मगर फिर भी ऑनलाइन बिज़नेस के तहत उन्होंने वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल और ई-कॉमर्स के ज़रिए काम कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे फिर इंटरनेट के ज़रिए आप लॉजिस्टिक्स को रियल टाइम जो है वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर भी जो है ई-बिज़नेस के अंदर भी यही स्ट्रेटजी को अप्लाई हो सकती हैं कि आप जितने भी काम करते हैं वो आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी आपने अगर आप ये देखेंगे अगर आप
कि आपने होटल बनाया हुआ है, तो वहाँ आप पास 2 किस्म की सर्विस दे रहे हैं। एक सर्विस ये है कि आप के पास एक बंदा आके वहाँ ऑर्डरिंग करता है, और फिर दूसरा ये है कि आपके पास ऑनलाइन भी ऑर्डरिंग करता है। तो अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डरिंग करते हैं, तो फिर ये आप एक किस्म का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि दूसरे हो सकता है आपके कंप्यूटर के पास ये फैसिलिटी ना हो, जहाँ पर होम डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो ऑर्डरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने वाली बात हुई। फिर कुछ चैट रूम्स और डिस्कशन बोर्ड जो है वो डेवलप किए जाते हैं, जो जिनके जरिए आप उनको प्रोवाइड करते हैं। ये सारी बस यहाँ तक खत्म करते हैं इसको, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो उसको देखें। मगर ये कि ये काफ़ी है।